Hello, my fabulous viewers, and first of all, today is 6th March, and wish you all a very, very happy Holi. And color yourself with joy and love and positivity. अपने आप को खुशी के रंग में रंगे, पॉजिटिविटी के रंग में रंगे और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें. And tomorrow is a very big day because Saturn is moving into the sign of Pisces. So a lot is happening in the sky. So this is the reading for the singles for the sign of Cancer. Sorry, for Cancer people. Now single means this is for those people who consider themselves single for some reason. मतलब वो अपने आप को single ही समझते हैं. And supposing even if you are in a relationship or marriage, आपको ऐसा लग सकता है कि आप सिंगल ही हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं. So this is for people of Cancer sign and those who consider them single for whatever reason. This is a reading from 1st to 15th of March. Now remember, this is a general reading, so it may or may not resonate with each one of you. Please take whatever resonates and leave the rest, and also do not try to fit in. So once again, a very happy Holi. So let's start with the sign of Cancer. Let's see what's there for the Cancer people. Now I'm going to take out your energy, your person's energy, the challenges, solutions, and the near future. What is there for Cancer collective, my love team? What is there for Cancer people who are single? What is the reading for Cancer, my love team? This is for Cancer people. Okay. This is your energy. This is your person's energy. Oh my God. This is your, these are your issues. This is your solution, and this is the near future. Near future. And bottom of the deck, you have the Page of Wands in the reverse. Okay, Cancer, your energy is Knight of Pentacles in the reverse. This seems that you are not in a mood for love. आज के टाइम पे अभी इस समय आपकी ज़िंदगी में लव की कोई जगह नहीं है. आप इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे. दिस इज़ योर एनर्जी. दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स. नाउ जस्ट इमेजिन दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स इन द रिवर्स एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स इन द रिवर्स एज वेल. क्वीन ऑफ कप्स इन द रिवर्स का मतलब है कि आपके पार्टनर की भी लाइफ में इस समय प्यार मोहब्बत की कोई जगह नहीं है. यानी वो लोग, उनके लिए प्रायोरिटीज़ कुछ और है, और एटलीस्ट लव की अभी आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रायोरिटी नहीं है. नाउ व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन यू टू? इश्यूज द टेम्परेंस इन द रिवर्स. नाउ टेम्परेंस इन द रिवर्स मीन्स कि आप लोगों में कोई भी सामंजस्य नहीं है, आप लोग में बैलेंस नहीं है, आप लोगों में पेशेंस नहीं है. इस समय एक दूसरे के लिए टाइमिंग भी सही नहीं है. इस समय आप लोग का टाइम भी ऐसा चल रहा है कि इट इज़ नॉट परमिटिंग कि आप लोग आप लोगों के लव प्रायोरिटी हो. सो दीज आर द रीजंस. डिवाइन टाइमिंग भी नहीं है और आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए एक दूसरे के प्रति कोई भी सामंजस्य, बैलेंस नहीं है, कोई भी कॉमन मिडिल ग्राउंड नहीं है मिलने के लिए. ना व्हाट आर द solution? The Page of Cups in the reverse. Now just imagine the Knight of this is the Knight of Cups in the reverse. This is the Queen of Cups in the reverse, and the solution is the Page of Cups in the reverse. We will clarify and see what this Page of Cups is. Lot of cups. There is a big emotional problem between you and your partner. Emotional problems ही देख रहे हैं इसमें. पैसे रुपए की कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें इमोशंस की प्रॉब्लम है. And what is the solution? The solution is the strength. The near future is a strength which shows कि near future में आप इन obstacles को face कर ले जाएंगे और आप अपने determination और confidence आपका build up होगा और उसमें ही रहेंगे आप. And bottom of the deck is Page of Wands. Page of Wands in the reverse. तो इसमें कहीं भी movement आगे नहीं दिख रही है. So let's clarify the Cancer people. Now please clarify the Knight of Cups in the reverse for the Cancerians. Why the Knight of Cups in the reverse? What are they feeling? What is the emotional turmoil? What are they feeling? Knight of Cups in the reverse, my love team. This is for Cancer people. Knight of Cups in the reverse. Please clarify the Knight of Cups.
ओके, नाइट ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय द टेम्परेंस, और आपके प्रॉब्लम्स में भी टेम्परेंस ही आ रहा है, यू नो, आपके चैलेंजेस में टेम्परेंस, और टेम्परेंस अपराइट, यू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड यू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. सो या इस समय ऐसा लग रहा है कैंसर कि आप लोग आप स्पेशली आप अपने मनी पे फोकस्ड हैं. आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, आप उस पर फोकस्ड हैं, आप नई दिशा में जाना चाहते हैं, उस पर फोकस्ड हैं. आप बिल्कुल भी इस समय इमोशनैलिटी में पड़ना नहीं चाहते हैं. आप नहीं चाहते हैं कि आप कहीं से भी वनरेबल हो या आपको लगे कि आप कहीं पे भी इमोशंस को लेके वीक पड़ रहे हैं, और आप अपना बैलेंस और पेशेंस बनाए रखे हुए हैं. आप दरअसल स्टेबल होना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में, जो कि आपको नहीं मिल रही थी अब तक. इसलिए अब आप अपनी स्टेबिलिटी खुद अपने आप से अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप वर्क कर रहे हैं. आप अपने मनी पे फोकस्ड हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं इस समय. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन योर पर्सनस एनर्जी विद द क्वीन ऑफ कप्स इन द रिवर्स. Please clarify the Queen of Cups in the reverse. My love team, what is this Queen of Cups in the reverse? For Cancer people, for the person of the Cancer के partner की energy Queen of Cups in the reverse है. What is this Queen of Cups in the reverse? What are they wanting or not wanting? Okay, surely interesting. इनका जो the Queen of Cups is clarified by the Tower in the reverse, by the Page of Wands upright and by the King of Swords upright. आपकी लाइफ में आप अपने मनी पे फोकस्ड है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस्ड है, और ये भी प्रैक्टिकल चीज़ों पे ही फोकस्ड है. आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है. ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, कुछ चीज़ें, आपका रिश्ता ऑलरेडी हिल चुका है, आपका रिश्ता ऑलरेडी चैलेंजेस से गुजर चुका है. तो ये पर्सन एक नई डायरेक्शन की ओर देख रहा है, नई डायरेक्शन में मूव कर चुका है. ही इज़ प्लानिंग विद थ्री ऑफ वॉन्ड्स अपराइट इज शोइंग कि ही और शी आपका जो पार्टनर है वो अपने वो भी अपने फ्यूचर पे ही फोकस कर रहा है. वो जो भी काम, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसी पे फोकस्ड है, और ये उसमें कामयाब होना चाहते हैं. लाइक दे आर बिल्डिंग द फ्यूचर ओनली. सो इसलिए आप लोग बिल्कुल अलग अलग दिशा में हैं. यू पीपल आर टोटली डिफरेंट. आप लोगों के बीच में इमोशंस है ही नहीं, इमोशन मर चुके हैं. और टावर इन द रिवर्स का मतलब आप लोग को ऑलरेडी ब्रेकअप के थ्रू आप लोग जा चुके हैं. Now let's clarify the temperance in the reverse, which is in your challenges. So why the temperance is in the reverse for Cancer people? What are the challenges? What are the challenges of Cancer, my love team? Okay, temperance is clarified by the Emperor in the reverse, by God, the Empress in the reverse, and by the Five of Wands upright. ये तो क्लियर कट एक पावर कपल है, एम्परर एंड एम्प्रेस, लेकिन ये दोनों रिवर्स में है विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स. एक्चुअली आप दोनों का पेयर कपल बहुत अच्छा है. आप दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, आप दोनों मैच्योर्ड हैं, और आप दोनों अपने आप में काफ़ी काफ़ी अबंडेंट है. मतलब आप लोगों के पास सब कुछ है जो होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के बीच में जो चैलेंजेस हैं वो दिख रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स. तो ये शो करता है कि कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या बाहरी कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी इंटरफेरेंसेस है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया है. दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के व्यू पॉइंट्स बहुत डिफरेंट हैं. लोगों का आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट है, आपके पर्सन का व्यू पॉइंट डिफरेंट है, और साथ में कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई और बाहर के लोग हो सकते हैं, उनका भी व्यू पॉइंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप लोग कहीं पे भी मिल नहीं सकते हैं. आप लोग का कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है जिस पे आप लोग मिल सकें, और इसीलिए आप दोनों अपने अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, अपने अपने इमोशंस पे फोकस कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन इज द पेज ऑफ, प्लीज क्लैरिफाई द पेज ऑफ कप्स in the reverse as a solution for Cancer people. So what is this page of cups? Please clarify the page of cups.
Page of Cups is clarified by the World in the reverse, by the King of Swords in the reverse, and by the Chariot in the reverse. आपका सोल्यूशन तो ये दिख रहा है कि ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है और ये हमेशा होता रहता है। तो ये क्योंकि हमेशा होता रहता है तो आप लोगों का सोल्यूशन ये है कि आप लोग के जो भी इश्यूज़ हैं उनको आप लोग एक फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करें या फिर एक दूसरे से बातचीत करके जिसकी जहाँ पे गलती है या दूसरों के व्यू पॉइंट्स को देख के समझने की कोशिश करें। और वरना ये आप लोगों के बीच में ये एक हिस्ट्री बन चुकी है कि ये बार बार होता रहता है, बार बार आप लोगों में ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप होता है तो बहुत ही भयंकर तरीके से ब्रेकअप हो जाता है। इसमें इमोशंस की कमी है। ये रिलेशनशिप इट सीम्स कि ये ज़्यादातर जो है ना इसमें स्टेबिलिटी की कमी है। ये प्रैक्टिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है। मतलब इसमें ना तो इमोशंस हैं ना इसमें कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ होते हुए दिख रहा है। और ये हमेशा आप लोग साथ आते हैं फिर अलग हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही दिख रहा है कि भाई वंस एंड फॉर ऑल आप लोग इट इज़ शोइंग कि आप लोग बातचीत करें और इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करने की कोशिश करें वरना ये रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी। नाउ द नियर फ्यूचर इज़ अ स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ फॉर द कैंसर पीपल नियर फ्यूचर में? लियो एनर्जी, व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंथ इन द नियर फ्यूचर फॉर कैंसर? Okay, this is clarified. Strength is clarified by the Four of Swords upright, by the page Knight of Pentacles reverse, and by the Death in the reverse. या आप ये वर्ल्ड इन द रिवर्स भी आ रहा है, डेथ इन द रिवर्स भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में कैंसर आप लोग रेस्ट करेंगे, रिकवर करेंगे, बहुत सोचेंगे समझेंगे कि क्या चल रहा है और फिर इसको आने वाले टाइम में आप लोग ये आप प्रैक्टिकल है कि नहीं है इस पर काफ़ी सोच विचार करेंगे। और आप आने वाले टाइम में आप काफ़ी डिटर्मिन्ड रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको एग्जैक्टली पता है कि इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है और आप अपने पावर में रहेंगे। और शायद आपको अगर लगेगा कि ये रिश्ता बार बार रिपीटेडली ऐसा होता है तो आप शायद अकेले ही रहना पसंद करें आने वाले टाइम में। और आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे ताकि बात आगे ना बढ़े, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा भी आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं। सो यू विल रिमेन इन योर पावर इन द नियर फ्यूचर। साथ आने का तो आप लोगों का नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी पेनफुल एंडिंग हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा एक को डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भरता दिख रही है। लेकिन प्रैक्टिकली कहीं कुछ नहीं होता है, नथिंग इज़ हैपनिंग प्रैक्टिकली। तो आप अकेले ही रहना पसंद करेंगे, आप इसी पे सोच विचार करेंगे कि भाई ये रिलेशनशिप प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। सो यू विल ट्राई टू रिमेन सिंगल एंड इन योर पावर। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर्स। आई होप यू लाइक द रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, गिव hit the like button and it will definitely motivate me. And thank you very much for watching, and once again wish you a very happy Holi. Thank you and bye bye.